السلام علیکم، خبرزار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، گزشتہ بدھ ہماری قومی تاریخ کے بدترین دنوں میں سے ایک تھا. یہ وہ دن تھا کہ جس دن چشم فلک نے پنجاب کے سب سے بڑے کارڈیولوجی ہاسپٹل PIC کو میدان کارزار بنتے دیکھا. آئیے ان مناظر کی ایک پیروڈی ہم بھی دیکھتے ہیں. یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ چل گیا ڈاکٹروں کی اوقات کیا ہے. تو میں کہا چنگی گل ہے، تو پتہ چل گیا ڈاکٹر چیز کی ہوندا ہے. اچھا پہلے وکیل صاحب کرن لگے سن بک بک، میں ٹکا کے رکھی نا ایک تے کیسیاں نکلیاں ہوندیاں چیکاں. روندے پٹدے گئے IG کول کہ سر جی مہربانی کرو دہشت گردی دی دفعہ لاؤ. انہیں کہا چپیڑ تے کیڑی دہشت گردی ہوندی ہے. پھر وکلا حضرات روئے اتھے رج کے کہ سرکار کوئی مہربانی کرو، کچھ تے ایسا کرو بھی ساڈے بھی کھ رہ جان. ساڈی چنگی بھلی دہشت ہوندی سی افتخار چوری دے دناں چ، اج تے سانو ٹگے ٹوکری کر چھڑیا ہے ڈاکٹراں نے بھی تے پولیس نے بھی. یہ عادتیں تبھی کی خراب ہوئی ہیں سر. اوے صوفی تو وچ نہ بول، صوفی ادھر بیٹھا ہے. مینوں پتا ادھر ہی بیٹھا ہے. اچھا ایک تو جس کو مائک دے دینا وہ حجاج بن یوسف بن جاتا. اب دیکھو کس بے شرمی اور ڈٹائی سے اپنی جواں مردی دلہ پٹی اپنے آپ کو پوز کر رہا ہے. پتہ ہے کس ڈاکٹر کی پیروڈی کر رہا ہے؟ کون سا سر؟ جس نے تقریر کی تھی بینچ پہ کھڑے ہو کے اور جو PIC پچھلی طرف سے بھاگ گیا. سٹیمپیڈ دیکھی نا آتے تو بس پھر نیلے پہ دہلا انہوں نے تو کرنا ہی تھا. اے بھائی نے اجازت ہے تقریر پوری کر لیے. وہ تو ٹھیک ہے ہی، تمہارے ساتھ ڈھیر کیا لگا ہوا ہے؟ ایک گھومتے پنجاب تے ستی پئی ہے. اندھا بتا رہا ہے. چلو یار جلدی اپنی تقریر مکمل کرو. بے ربط تقریر کر رہے ہو اور فتنہ انگیز تقریر کر رہے ہو اور شرمناک تقریر کر رہے ہو. اس تقریر کے بعد وہ ذلت ہوئی، وہ ضلالت ہوئی، ہمارا سر شرم سے جھک گیا. وہ جو نرسیں بیچاری بے نوا کھڑی لافٹرز دے رہی تھیں، وہ جو ینگ ڈاکٹرز ایسے ہی خام کا اترا رہے تھے جیسے یہ دونوں ایک سائڈ پہ بیٹھے یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا، ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ آنے والے چند دن میں کس قدر جگ ہسائی ہونے والی ہے ہماری. اور مکمل کرو اپنی تقریر. وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا. واہ واہ جی واہ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جی واہ. ذوق والے لوگ لے جناب، اب پیش خدمت ہے جواب غزل. غزل. میں یہاں ووٹ مانگنے نہیں آئی، میں یہاں اپنے لیڈروں سے خطاب کرنے آئی ہوں. میں آج بھی کہتی ہوں سر، ہمیں PIC کی طرف جانا چاہیے جہاں پر ایک دو ٹکے کے ڈاکٹر نے وکیلوں کی غیرت کو للکارا ہے. اب بھی وقت ہے، PIC پہ چڑھ دوڑو، اپنے ساتھ اسلحہ لے کے آؤ، ٹینک لے کے آؤ، توپیں لے کے آؤ، ایٹم بم لے کے آؤ. میں پھر کہوں گی اپنے لیڈروں کو کہ سر یہ تیری گل چ نا بہت آج ذرا کٹا. وہ وقت یاد کرے قائد محترم کیڑا جی؟ کہ جب IG گھٹنوں کے بل پہ آتا تھا اور پوچھتا تھا کہ وکلا ہمیں بتائیں ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. کیا آج کا IG گھٹنوں کے بل پہ آتا ہے؟ وہ آ ہی نہیں سکتا، لمبا ہی بہت ہے. قائد محترم آپ ستو بھی کے بیٹھے ہیں. وہ میں ہنے چاہ پیتی ہے. قائد محترم میں تھا جگتا بھی کر رہی. اور سر کہہ تو صحیح رہی ہے، ساڑھے تسی ہاتھ بنے نے نہیں تو تسی نہ ڈاکٹر دی ایٹ نیٹ بجا دیئے. اور منہ سنبھال کے گل کرو، کسی مستری دے بچے. اور مستری دا بچہ کینوں کیا ہے؟ دو ٹکے دیا ڈاکٹر. اوے اپنا ہی فوجی ماری جانا، میں ڈاکٹر نہیں وکیل ہاں. دسیا بھی کرو نا. تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اسی انتقام دی آگ چ انے ہو گئے آفتاب صاحب. وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن کس بات کا انتقام؟ دیکھو آفتاب صاحب، جدو ساڈی عزت نوں للکاریا جائے گا تے اسی پھر دساں گے. اوے آفتاب ادھر بیٹھا ہی کیوں پبلک کو جتیاں کھانیاں ہی؟ ایک تے میڈیا نہیں پتہ لگتا، کدی ادھر تے کدی ادھر. میڈیا مذمت کر رہا ہے تم نے جو جہالت کی تھی اس دن. اوے زبان سنبھال کے گل کر، چپیڑ کھائے گا. تو ہے کتے بھائی؟ ادھر آ ذرا، ادھر آ. کدھر گیا؟ او کاکا ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ. تو بڑا بول. ہاں کیوں؟ ہاں وہ تو بھی چھوٹا. ادھر آ، ادھر آ. ہے کتھے؟ ہے کتھے؟ کدھر مر گئے ہیں؟ اچھا وہ میڈیا دیکھ. ہے کدھر ہی؟ او یار، او یہ میڈیا کو مت مارو. ادھر آ. ادھر آ بڑا PIC. وہ سارے پہ گئے ہو؟ کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ ناظرین جناب یہ لائیو منظر دیکھ رہے ہیں PIC کا. یہاں پہ دیکھیں کیا غدر مچا ہوا ہے جناب، اور ادھر بالکل کٹ کٹا پاٹا.
कुटापा हो रहा था वो सचमुच लग गई है उसे। ब्रेक ले लो की हो गया वे वेखी जा रहे हो तुम पता उन्होंने लत मारी है तो तुमने क्यों उसके साथ पंगा किया था? ऐसे नजदीक कोई टॉयलेट है दोनों मुतहारब ग्रुपों में मीडिया और हमारे मिनिस्टर साहब फयाज चौहान, हाँ, वो इस शोर शराबे में ऐसा फंसे, उनके साथ तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन फयाज चौहान ने बहरहाल बड़ी हिम्मत की। इस तरह मॉब जो है वो तो आपको कुछ भी कर सकती है, और वो कहते हैं मुझे सीधे फायर मारे। लेकिन पीटीआई मुखालिफ तबका बगले बजा रहा है कि फयाज चौहान के साथ, फयाज चौहान तो हीरो था उस दिन। उसको वैसे भी उसके लीडर ने शाबाश दी है और सब लोगों ने देखा है। कौन से लीडर ने? एक को इमरान खान को लीडर कहते हैं, दूसरा बुजदार साहब को। हाँ तो ठीक है, एक होता है आपका इमीडिएट बॉस, एक होता है आपका अल्टीमेट बॉस। भी अल्टीमेट बॉस जो है उसने शाबाश दी है। बुजदार तो शाबाश ना देता, लेकिन इमरान ने तो शाबाश देनी थी, वो खुद दिलेर आदमी है। और बुजदार ने अगर तबसरा करना होता तो जरूर फोन करके कहता साईं तू पागल तो नहीं थी क्या? गल ਓਏ ਉੱਠ ਓਏ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਓਏ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ओ वो को बाई चॉइस पड़ा हुआ है, वहां पे मार पड़ रही है। ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਆ ओ मीडिया, ओ मीडिया साहब आप उठ क्यों नहीं जाते? मैं उठन जोगा हुआ ते उठा ना एने अन्ने वाल लत मारी ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੋਟਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓ ਡਾਕਟਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਏ ਓਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ तेरे मरीज नु है कि मैं चेक कर लेना। बात सुनो, उसको जगाओ वो जो सो रहा है, ਓ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜੇ इसको हिलाओ अच्छी तरह। ਓ ਜਨਾਬ ਉਠੋ ਓਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਧਰਮ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ और चलो उसे सोया रहने दो, डिस्टर्ब ना करो। हद होती है, हद होती है जलालत की, वाहियाती की। कोई शर्म, कोई हया नामी चीज। ओए मैनू की कह रहे हैं मैं ते आप विक्टिम मगामा अड्डी वाला बूट बजाई ये अड्डी वाला बूट तुम्हें नहीं, पूरी कौम को पड़ा है। पूरी कौम दा यही हाल है। हाय अल्लाह हर पासे उड़ खुसर फुसर शुरू हो जाए। अच्छा, उसे मार पड़ी है और बेशर्मी कर रहा है, शर्मी नहीं कर रहा, मैनू दर्द हो रही है। तो जाओ इसका इलाज कराओ। इलाज किथों करावा? डॉक्टरों ने तो लित्र पै रहे ने। इनको रास्ता था बड्डी दिन केले भी लगा। देखिए, सिर्फ 4 या 500 वकील और उन्होंने पूरी रियासत को यरगमाल बना दिया। आप बताएं आफ्ताब साहब, दुनिया हम पे हंसे या ना हंसे? वाकई हंस रही है और हंसती रहेगी जब तक ये सोते रहेंगे ना। ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣੀ ਉੱਠ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪੇਜ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਵਾਂ? और बात सुनो, ये डॉक्टर को क्यों पकड़ रखा है? ये दौड़ जाता है, पिछों निकल जाता है। मैं क्या की दौड़ क्यों खा? तो यार वो शेर तो सुनाना, वो जो चुप नहीं होता। आप चुप हो जाएं बस एक्सक्यूज मी जी मेरे को लोग कुछ शेर सुन लो। हाँ जी, आप सुनाइए सुनाइए। हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। ये तो मिसरा है, पूरा शेर सुनाओ। पूरा शेर सुनाने वाले दा हशर वेखिया जी। नहीं यार, लेकिन शेर बहुत अच्छा है, सुनाओ। मैनू लत बजी, मैनू इन्ना ही याद। ये दूसरा मिसरा है। पहला ये है, फूल तो 2 दिन बहारे जा फजा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है। जो बिन खिले मुरझा गए। अच्छा, ये बाजू पे क्या हुआ, टूट गया? नहीं सर, दंदी बड़ी है। किसने? उसी हबशी ने। ये सारी लड़ाई छड़ के सिर्फ मेरे मगर से अपना फयाजुल हसन चौहान ने हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵਜਾ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮਾ पै गया। यार उसने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है। एक वकील था जिसने बड़ी मक्कारी की, वो मुचड़, वो पहले बहुत तोड़फोड़ कर रहा था, लेकिन देखा जब पुलिस आ गई फटाफट काला कोट उतार के मरीज बन गया और व्हील चेयर में बैठ के बाकायदा एम्बुलेंस के जरिए कहीं और शिफ्ट हो गया। ਉਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ मैं मरी जाना सी, मैं मारी गया। तो कहीं और चले जाओ। और किथे पिशावर चले जाओ। अच्छा गल सुनो जी, लारो पिशावर किन्ने? बस एक बूट होर वजना तेरे। यहाँ से 4 घंटे इस्लामाबाद है, आगे 2.5 घंटे। सर जी जी, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। क्यों नहीं रहे? ऐसी क्या बात है? नहीं ना रहा, मैं नहीं रहा। वैसे वकीलों ने मीडिया को भी बाकायदा धमकी अमेज पैगाम भेजा है, कहते हैं बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग, कहीं ऐसा ना हो कि रिपोर्टिंग के लिए तुम्हें अदालतों में ही ना आने दें। अभी इससे क्या होगा?
हम तुम्हारी ही रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਸੁੰਨ ਮੁਖੀ 'ਚ। जी आप बुजुर्ग हैं, सीनियर वकील आए ना, जरा यहाँ आके बैठे, मैं आपके लिए कुर्सी मंगवाता हूँ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ। बड़ा चंगा आदमी है, यकीन करो है 2 घंटे की मरीज दी ऑक्सीजन चूसता रहे। यार इसको झंझोड़ के जगाओ, इसे बताओ क्या हो रहा है सूबे में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੰਬ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ नहीं जागया। बस फिर इसने नहीं जागना। अच्छा जनाब, तकरीबन 80 वकला को जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस जब उन्हें लेके जा रही थी अदालत में पेश करने के लिए, उनके चेहरों पे मास्क चढ़ाए हुए थे। जी। तो वकला कहते हैं ये तो तज़हीक है हमारी। पर वैसे मुल्जिमान जो दहशत गर्दी के होते हैं उनके चेहरे पर मास्क चढ़ाया जाता है। तो इन सब पे दहशत गर्दी लगी थी। सर जिन जिन के चेहरे पे मास्क थे सबको दहशत गर्दी के पर्चे में अंदर किया गया है। और ये कोई 250 के करीब लोग हैं। और गिरफ्तार अब तक 80 हुए तकरीबन। अच्छा, एक बड़ा अहम कैरेक्टर जो वजीर आजम का मुबैना भांजा, हाँ जी, नियाजी साहब जो हैं, न्याजी साहब हैं, बैरिस्टर भी हैं जी, वो किस चक्कर में आगे आगे थे, एक्टिव थे। इवन पुलिस की गाड़ी जलाए जाने से पहले उसके दरवाजे वही खोल रहे थे। नहीं, लेकिन गायब क्यों, मतलब अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? और वजीर आजम के भांजे हैं। नहीं नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वजीर आजम का भांजा अगर मतलूब है ना तो वजीर आजम खुद पकड़वाएगा। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੁਕਲਾ ਕੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 1,20,000 ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। और बात सुनो, इंसानियत भी कोई चीज होती है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡਾ ਪੈਣ ਡੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਹਿਬ। वो तो उसी से बदला लेते ना जिसने तुम्हें चंड मारी थी। तुमने मरीजों के मास्क खींचे, देखें। ऑक्सीजन से महरूम किया। जी। इतने माचो थे तो सीएमएच पे हमला करते, तुम्हें देते पता वो आगे से गज की तरह सीधा ना कर देते, फिर कहते तुम ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ सीएमएच ਤੇ हमला कर दे। क्यों, वहां क्यों नहीं करते? इसका जवाब मैं दूं? जी आप दें। क्योंकि वहां के जो इंचार्ज है ना वो इस तरह सो नहीं रहे होते। और यार अब इसके पेट पे हाथ मारो, शायद जाग जाए। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ नहीं जागया। वैसे मैं समझता हूँ साउथ एशिया को नजर लग गई है। मुजाहरे इंडिया तो हो ही रहे थे, अब यहाँ भी शुरू हो गए। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਆ? वकील नहीं, मोदी पुतरा हुआ है और उसकी वजह से बहुत शोर शराबा है। सर पूरे हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं। वो जो मुतनाज़ा बिल पास किया गया सर, जी 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 जी, इंडियन सिटीजनशिप का। सर हैदराबाद क्या, लखनऊ क्या, केरला क्या, हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं। इवन यहाँ तक हालात है, इंटरनेट बंद है, टेलीफोन बंद है, लोग गिरफ्तार हैं, आर्मी आ चुकी है। और तो और जापान के वजीर आजम ने अपना जो दौरा मनसूख कर दिया। ये बड़ी शर्म की, अफसोस की बात है। मोदी साहब क्या सोच रहे होंगे वैसे? ये सारा कश्मीर का जी। नहीं नहीं, जिस तरह उस जाहिल वकील ने अपने गुस्से का इजहार किया सिर्फ इंतकाम लेने के लिए, अब सारी वकला कम्युनिटी ये नहीं कह रही। जी, मैंने कल भी तस्करा किया था। मैं जिन वकीलों में उठता बैठता हूं उनके पास गया तो सर नहीं उठा रहे थे, और उस वक्त बखुदा मेरे जहन से निकल चुका था ये वाक्य। तो मैंने बाकायदा नोटिस किया, मैंने पंजाबी में कहा सिर सट के बैठे हो की हो, तो कहने लगे कि शर्मिंदा ही इतने। एकदम मुझे याद आया, बड़ा जुल्म हुआ आज, और ये जुल्म वकला के खिलाफ हुआ है। यानी वकील को आप आइकॉन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी की बजाय दहशतगर्दी, मारधाड़, तो ये काम तो नन्नू गुराया भी करता था, ये काम तो गुल्लू भट्ट भी करता था। तो फिर वो डिग्रियां, वो सर्टिफिकेट तुमने काहे को लिए? सारे सीनियर वकला, हामिद खान, मलक कयूम, उन्होंने कहा जी हमारे सर शर्मिंदगी से झुके हुए हैं। भाई एतजाज हसन ने शर्मिंदगी का इजहार किया, उसे इंतकामन आने नहीं दिया गया बार में, दाखिले पर पाबंदी लगा दी कि जी आपके दाखिले पर पाबंदी है। यानी ये 80-90 में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी ना जी, कि इधर से 15-20 का जत्था गया दूसरे कॉलेज पे या हॉस्टल पे हमला करने, ये उस तरह का काम हुआ है। और वो वकला और डॉक्टर्स में, यानी इट शोज कि हम किस इखलाकी गिरावट का शिकार। कोई शक नहीं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि यंग डॉक्टर्स भी छछोरपने की इंतहा करते हैं। मैंने देखा है कुछ सीनियर डॉक्टर्स भी उन्हें बाकायदा सपोर्ट कर रहे होते हैं, शह दे रहे होते हैं, लेकिन ये जो वकला ने कर दिखाया ये तो अंत है। लेकिन सीनियर वकील ऐसा नहीं करते। सीनियर वकीलों में भी ऐसे हैं जो एक खास तरह के जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। वो की जी? वो ये कि जहां बोलना होता है वहां भी खामोश रहते हैं। बड़ा जुल्म हुआ है। और वो सो रहे हैं। ओ उठो भाई उठो। हाँ जी, की कहते हो? और नोटिस लो इस सारे वाक्य का। नोटिस ले लिया, यकीन करो। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा हूं जी। सर देखने में आ रहा है कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? इस पूरे सीन में कानून के रखवाले दो थे, एक वकील, दूसरी पुलिस। जी,
वकला का मामला तो आपके सामने आ गया है, लेकिन गौर तलब बात यह है कि पुलिस का रवैया भी एक सवालिया निशान छोड़ गया। सर वो कहते हैं हमें खौफ था कि साना मॉडल टाउन जैसा वाकया ना हो जाए। वो एक और सूरत हाल थी, वो सारा वाकया ऑर्केस्ट्रेटेड था, रैंडमली नहीं हुआ, और इसकी बाकायदा तैयारी थी, और आपको जो रोल प्ले करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट करता था कि आईजी पुलिस, जिनका ये पहला इम्तहान था, वो इसमें सुरखरू होते। ये वजीर आजम के कहने पर 80-90 बंदे जो राउंड अप किए गए, अगर तो सिर्फ इन पर ये जो अस्तगफार, अगर इन पर डिपेंड करते तो हफ्ते गुजर जाने थे जी, कुछ ना होता। जिन्होंने पेशबंदी करनी थी वो तो ख्वाब खरगोश में महज है। यार आ मुंडा नहीं नजर आया इन्होंने, मैं बहुत कुटना से। आफ्ताब साहब, मीडिया वालों की छोटी छोटी सी तो खुशियां होती, हाँ जी, कब तक अपनी एनिवर्सरियां बर्बाद करते रहे। तो दिन हज़रात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी जनाब। सर खबर है कि शादी की तकरीब में बेसुरा गाने पर गुलकार को फायर दे मारा। ये अपनी नवी को होस्ट है सर। को होस्ट फीमेल नहीं हो, नया को होस्ट कह सकते हो। तो सॉरी सर। सर ये गोली कहाँ लगी है? ये टांग पे लगी है। और टांगना भी मर गया बेचारा। नहीं, मरा नहीं है। अच्छा जी। मतलब फायर खोल दिया उसने, बेवकूफ ने, जो सामीन में एक बैठा हुआ था, और लगा भी कहाँ, जो पटीला, ये जो चपनी होती है, घुटने के एन ऊपर लगी। ये बात तय है कि अब टांग जाया हो गई। चलो उन्हें बैग ही गाना, कोई मसला। ये वियतनाम का वाकया है, हनोई का। सर बागी साहब जैसा होगा जज्बाती, कोई जज्बाती कर दिया था उसने। अच्छा, वो आगे से कजबैसी करने लगे। एक तुम गा बेसुरा रहे हो, और वियतनाम में ये पूरी वबा है कि शादियों ब्याहों पे आप अच्छे सिंगर्स को बुलाते हैं और खूब टुन होके उन्हें सुनते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप फ्लॉलेस हो, इमैक्युलेट हो। लोगों ने कहा भी कि आप जरा प्रॉपरली गाएं। वो आगे से कहे कि नहीं, मैं बिल्कुल सुर में हूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तुम सारे नशे में हो। और फिर उसने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब उनमें से एक उठा है और उसने 2 फायर दाग दिए। अब मेरा गुमान ये है कि उसने उसे डराने के लिए ऐसे ही एक साइड पे करके मारे थे, क्योंकि वो टुन था इसलिए निशाना ठीक लग गया। अदरवाइज वो इतना अच्छा निशानची शायद ना होता। सर वैसे परफॉर्मर्स के साथ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, और परफॉर्मर्स को मश्क सुखन से तजुर्बा हो जाता है कि कौन सी ऑडियंस ऐसी है कि जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये बलूचिस्तान का वाकया है कि चमन में एक पूरे बैंड की पिटाई कर दी उन्होंने। जी जी जी। शादी की तकरीब उन्होंने खूब धुलाई की। क्या पैसे तुमने हमसे ढेर सारे लिए। अच्छा, उस वक्त पैसों का अफसोस नहीं होता, अफसोस ये होता है कि हमारे फंक्शन का सत्यानाश कर दिया। लेकिन एक बड़ा दर्दनाक वाकया, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया सिंध में हुआ था, और हाल ही में फैसला हुआ उस केस का। एक मुगन्निया थी, उसने कहा जी मैं नाचूंगी नहीं, मैं नाच नहीं सकती, आई एम नॉट वेल। तो वो अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं कि जी अब मैंने कह दिया तो अब तो हर सूरत तुम्हें गाना होगा। उसने कहा जी मैं नहीं नाचती, तुमने जो करना है कर लो। अब वो बेचारी एक्सपेक्ट कर रही थी, ये किसी को नहीं पता था, तो उसने फायर मार दिया, वहीं पे डेथ होगी उसकी। तो इस तरह से ये 2 डेथ्स हुई, एक उसकी और एक उसके बच्चे और एक उसके बच्चे की। तो अभी रिसेंटली उसे उम्र कैद, 2 दफा उम्र कैद, दोनों केसेस में देखें 2 लाइव्स हैं, उम्र कैद हुई। सर ये कम सजा नहीं दी इन्होंने। बज़ाहिर तो ये लगता है कि बहुत कम है, लेकिन उसको बेनिफिट इस चीज का दे दिया कि तुम अपनी सेंसेस में ही नहीं थे। अगर सेंसेस में होता तो कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इसीलिए कहते हैं ना, ये उम्मुल खबाइस है, ये इंतहाई जलील चीज है। बज़ाहिर आपको बड़ी खुशनुमा लगती है, प्यारी प्यारी बोतलों में बड़ी रंगीनी टपकती है इससे, ये जलालतों की माँ है, उम्मुल खबाइस है। सर आज तो तुसी बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई है सिंध वाली। हाँ जी, मैं तो खुद हैरान रह गया इस पे रिसर्च जब देखी तो ये वाकया मेरी नज़र से नहीं गुजरा, आज मुझे पता चला है। अभी रिसेंटली सजा हुई है उस बंदे को। अगर पहले पता होता तो हम इसका खूब ढोल पीटते। लेकिन मुझे पुराने वक्तों का एक बहुत बड़ा सिंगर याद आ गया जो इसी की भेंट चढ़ गया, जॉन लेनन। कितना बड़ा सिंगर, इमेजिन का सिंगर। उसके नजरियात की वजह से नहीं मारा था, ओनरशिप में मारा था। कि मैं इसका इतना बड़ा फैन हूँ कि मुझे लगता है कि ये रोजाना उसको डिल्यूट कर देता है मेरी अथॉरिटी को। इसके ऊपर मेरी अथॉरिटी होनी चाहिए सिर्फ, क्योंकि जितना बड़ा मैं फैन हूँ इसका कोई और हो ही नहीं सकता। उसने गोली मार दी। अच्छा सर, मैं ते आड़ू एक फंक्शन ते गए हैं, वो लाड़े ने कहा जी यह बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ जुगतां करनी है। उन्होंने 6-7 जुगतां कीतियां, क्लैपां होईयां,
ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਟੁੰਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਗਾਇਬ। ਸਰ ਆੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्या बंद ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਲੀ ਜੇ, ਆਖਰੇ ਸਾਲਾ। अरे तो गलत गल। कहने जी अपनी फैमिली सेट कर ली सारी। वो तो उसने ऐसे ही कह दिया, आपकी बहन नहीं है, आपका भाई नहीं है ये। नहीं मेरी बहन है, क्यों नहीं? तो सारे कुलीग्स हम आपस में यही होते हैं। लेकिन बुरा गाना बड़ा टॉर्चर है, उसको बर्दाश्त करना। पिछले हफ्ते एक जगह में नाश्ता सुबह इनवाइटेड था वेलेंशिया में। अच्छा, अब सुबह के वक्त आप गाने गा रहे हैं और वो भी इतने बुरे, यानी एक बंदा के रोके पे वो उनका मुलाजिम और मदन मोहन के गाने गा रहा है। अब नाश्ते में गपशप लगनी दोस्तों की, ये वो। हालांकि नौशाद अली का गाना गाना चाहिए उसे, मुझे भूल गए सांवरिया। और ये सुबह का टाइम है जी, भैरव है, भैरव है, तो इसलिए सुबह का टाइम, रात का टाइम, ये कोई अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं होता, लेकिन सुरीला तो गाए ना। नहीं नहीं ना, ये साइड पे लिया करो। भैरव फिर भी 10 बजे तक उसका टाइम खत्म हो जाता है। पता है किसका टाइम शुरू होता है? जीन प्लासी का। बहरहाल उसको हमने कहा कि यार म्यूजिक लगा दे, गाना ना गा। बागीर का बंदा सारी रात गाना सुनता, रुपया नहीं देता। पैसे देने का क्या तुक है जी गाने में? पैसे नजर होती है। पता क्या, हमारे यहाँ जो सिंगर्स हैं ना, ये लिमो पे नहीं आते, उनके कोई डाचाज नहीं होते, कोई रैंचेस नहीं होते जहाँ वो रहते हैं। आप उन्हें कमीन कहते हैं, गाँव में उन्हें सेपियों पे रखा होता है आपने, 30 टोपे उसके कनक के देकर आप गुजारा करते हैं, तो फिर उन्हें नजर न्याज देनी चाहिए, देनी पड़ती है। अगर आप दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, को बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। बात यह है कि आप किसी फंक्शन में बैठे हैं, वहाँ ये अच्छा नहीं लगता, ये तमाशबीनी अंदाज। मैं डेविल्स एडवोकेट नहीं हो रहा, वो जो आप कह रहे हैं ना तमाशबीनी, वो निछावर किए जाते हैं, छट्टे, और बाज़ जगहों पे पंखे को मारे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके हाथ जोड़ के पैरों में रखे जाते हैं। जी जी जी, अगर कोई कदरदान हो तो। आड़ू ने पक्के च मारे, पक्का ही थले आ गया। यार ये कैसे हो सकता है? सर 500 वाली गड्डी मारी, 10,000 का पक्का थले। सर वैसे आज हमारी को होस्ट किधर है? आज हमारी को होस्ट भी मिसिंग है, शी इज इन इस्लामाबाद। रूबी अनम अल मशहूर पासादिक, वो बरूनी दौरे पे हैं। नासिर चिन्योटी कोई लामुतनाही सी फिल्म बना रहा है जो मुकम्मल नहीं हो पा रही। नहीं, पहले उन्होंने बनाई, गलत बन गई, दोबारा बना रहे हैं, फिर गलत बना बैठे। आप तब असल बात तो ये है कि हो जाता है, अच्छे अच्छे गाने वाले बेसुरे हो जाते हैं, इसमें कोई हाँ, मैं खुद जीसी में बहुत अरसा यार नॉट अगेन इड्डी उकता हाथ करे, पुरानी बातें लेके आ जाते हैं। मुझे नई या पुरानी के साथ तो कोई इलाका ही नहीं है, कोई इख्तलाफ ही नहीं है। मेरा मसला ये है कि ये रावियन कब था, किस सन में था। मैं हजूर आप लोगों से पहले होता, मेरे से पहले मेरे कजन्स थे, उनसे पहले मेरे चचा थे, उनसे पहले मेरे अब्बा थे, और अब्बा से पहले मेरे मामू थे। ये 1932 से चल रहा है ये सिलसिला। ये डैनी क्लिफ से भी पहले की बात है। ये डैनी क्लिफ कौन सी जी? अब अगर आप रावियन रहे होते, आपको पता होता डैनी क्लिफ कौन था, सोंधी कौन था, मैंने सिर्फ पितरस कौन था, डॉक्टर अजमल कौन था, मैंने सिर्फ अपनी प्रोफेसर इशफाक कौन था, मैंने सिर्फ डॉक्टर नजीर कौन था। और भाई मर गया भी डॉक्टर नजीर साहब, तो मैं भी नाल ही सुनी दिंदी दूसरे तुम मानो कि तुम रावियन नहीं हो। सर पुराने प्रोफेसर जड़े इन्हां दे नाम याद करना बंदा रावी ना हो जाए। ये सिर्फ प्रोफेसर नहीं थे, ये प्रिंसिपल्स थे। ओ माय गॉड, ये बात और है। सारे जेडी अपना जीसी कॉलेज है, बहुत पुराना बरतानिया जेडी अपना बरतानिया के दौर से बनी जी, राजे बरतानिया के दौर में बना था। यार उस बदनसीब को बात कर लेने दो। आड़ू साहब प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बिलाखिर आपको शर्म आई गई। सर ये रुडयार्ड किपलिंग भी यहीं से पढ़े हुए। रुडयार्ड किपलिंग यहाँ रहे जरूर हैं, लेकिन वो रावियन नहीं थे। अच्छा भाई, अब मेरी गुजारिश है आड़ू को बात कर लें जी। बता रहा था उस म्यूजिक के वहाँ कॉन्सर्ट होते थे, तो स्टेज भाईजान आप हूँ हाँ करें ना। चलो हम करेंगे हूँ हाँ करेंगे। जैसे ही स्टेज पर मैं फन का मुजाहरा करने के लिए जाता था, अच्छा जी, आप स्टेज पे चढ़ गए, स्टेज डिग पिया। ओए आप यकीन करें लोग इस इंतजार में होते थे कि स्टेज गिरे। मैं की कर सकता, मेरे नाल ही गद्दार बैठी है। और वो तो वक्त ही और होता था, अब तो थोड़ा सा ये बाल वाल उड़ गए, थोड़ा सा नहीं बेपना, वरना हेयर स्टाइल होता था, ब्लेजर पहना हुआ मैं जब मैं माइक पे जाता था। पहले तो आधा घंटा लग जाता था सिर्फ तस्वीरों के,
सेल्फियों पे सेल्फियाँ उस वक्त 3310 से सेल्फियां उतरती थी 3310 भी नहीं होता था। उस वक्त आफ्ताब बड़े ज़ौक वाले लड़कियां लड़के वहाँ होते थे, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा कह दिया कि गज़ल सुनाए मेहदी साहब की। तो जैसे ही मैंने वो गज़ल शुरू की, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, वाह वाह वाह, चले भी आओ के वाह वाह, गुलशन का कारोबार चले, वाह वाह, गुलों में रंग। वाह वाह वाह। और ये गज़ल जब मैंने वहाँ गाई, फैज साहब ने फायरिंग करती। तो इसे लगा कुछ नहीं? नहीं सर, फैज साहब भी टोन सी। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी अब्दुर्रहमान साहब। सर खबर है कि सांप ने ट्रांसफार्मर में घुसकर पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी। एडा लैंडमैन सांप। ये लाइनमैन की बात नहीं है, सांप को भी ठंड बहुत लगती है। ये भी तो की मुराद सर? होती है ना, बाज लोगों को, दाढ़ियों शाड़ियों को कि बहुत ठंड लगती है। अल्लाह मेरा जानदा है, पढ़िया लिखा बंदा एडा अच्छा ठाड़ी नहीं कहता। तो उसको ठंड लगी, ट्रांसफार्मर चूंकि गर्म होता है, वो उसके साथ जुड़ के बैठ गया और ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया। 24 घंटे बिजली इसलिए बंद रही कि किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि फॉल्ट एक लिविंग आइटम के तौर पे मौजूद है। लोग तो समझ रहे हैं कि मैकेनिकल फॉल्ट है, क्योंकि वहां पर तो मशीन्स लगा देते हैं ना कि जो मैल फंक्शनिंग है वो बता देती है। अच्छी मॉडर्न गाड़ियां ये सारी कंप्यूटराइज्ड हैं, वो जाके लगाते हैं कंप्यूटर, वो बता देता जी सब बिल्कुल ठीक है, अलबत्ता ये इसका मैल फंक्शनिंग दे रहा है। वो मैल फंक्शनिंग आ ही नहीं रही उसमें। मैल फंक्शनिंग तो सब बैठा जो हमने पता लगा ना सांप बैठा है, पूरा वापटा का हमला बीना लेके आ गया। अच्छा, ये केंटकी का वाकया है, जहाँ की KFC है, केंटकी फ्राइड चिकन। बाबा जी उतों दे रहे जी, वो कर्नल साहब और सर अब्राहम लिंकन। इब्राहिम लिंकन। ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਫਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ। आप लिफ्ट में बैठे हैं कभी? मैं दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट 'ਚ बैठा। लिफ्ट में बैठते नहीं है, खड़े होते हैं। वो लिफ्ट कहाँ पे है जी? सारा वो नहीं बेल्जियम 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਟਮ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। वो जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है एटोमियम, वहाँ पर एक्सपो भी है, रिसर्च भी है, बथेरा कुछ है वहाँ। लेकिन मेरे ख्याल सबसे तेज बुर्ज खलीफा में। बुर्ज अल खलीफा की लिफ्ट बहुत ऊपर तक जाती जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो स्पीड में भी इतनी तेज हो। तकरीबन 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चाइना में, ग्वांजू में, जो उनका ट्रेड सेंटर है, तो उसके अंदर वो मौजूद है। आप जिसकी बात करें, ये एटोमियम लिफ्ट जो बेल्जियम में है, वो यूरोप की तेज तरीन है। चाइनीज वो तो पूरी दुनिया की तेज तरीन है। ਇਹ ਸਰ ਸੱਪ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? यही बात सांप सोचते होंगे कि इंसान हमारे इलाकों में किस तरह आ जाता है। ये जंगली हयात है जो डिस्टर्ब होती है। हैबिटाट देखें ना, वो उनका है, हमने कब्जा किया हुआ। आप ये देखें जिन इलाकों में हम रहते हैं, ये अभी कल तक जंगल हुआ करते थे। सर गीदड़ बाकायदा नजर आते हैं। जी, गीदड़ अब भी नजर आते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएंगी, क्योंकि इंसान है जो सबसे बड़ा गासिब है। उसने यूसर्प किया हुआ सारा कुछ। जानवरों के जंगल छोटे हो रहे हैं, इंसानों के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर तो बहुत गर्म होता, सब के ना लगे। ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉੱਥੇ? नहीं, मरा नहीं, बहुत गर्म नहीं होगा ना वो। ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਵੜਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ। इंडिया में गुज़श्ता 8 सालों के दौरान 40 हाथी करंट लगने से मरे। हमारे यहाँ भी अक्सर हम जहालत करते हैं कि कुर्बानी के जानवर खंबे से बांध देते हैं। हाँ जी। खंबा हमें एक फिक्स्ड आइटम ऐसा मिलता है कि कोई मादर पिदर आजाद उसको बगैर पूछे उसके साथ बांध दे। कोई साइकिल बांध जाता है उसको। कोई साइकिल बांध जाता है, बच्चे चढ़ जाते हैं, हाँ जी। किसी की गुड्डी फंसी हुई है तार से, वो उतारने चला जाता है। बाज बड़े जानवर आपने देखा होगा, वो खंभों के साथ खारिश करने लगते हैं। हाँ जी, भैंसे वगैरह लो। भैंसे ਇਹ ਵੀ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। बल्कि कई बार खंभा फुट के भी करने लग पड़े। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਦਗੀ, हाँ ਲਾਲਟੈਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। 12-12 बच्चे उदो ही होंगे। सर प्योर आबो हवा होती थी, प्योर गज़ा, लोगों की उम्र भी बहुत होती थी। प्योर होती थी, एग्रेरियन सोसाइटी थी, उसमें ज्यादा बच्चे मैटर करते थे। जी, ये तादाद जितनी ज्यादा हो, लेबर आपके घर में, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत समझा जाता था उस वक्त कि घर के अफराद कितने हैं, मर्द कितने हैं घर में। अब बात नहीं रही। सर वो बड़े अच्छे वक्त होते थे पुराने। हाय हाय, कच्चे घर,
क्या खूबसूरत लगते थे कि उन तो साग ही नहीं बनता। नहीं, साग तो अब भी बहुत शानदार बनता है, वो घर नहीं रहे। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸਾਗ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। नहीं, कच्चे घर का रेफरेंस बड़ा खूबसूरत दिया। सर वो मैंने इसलिए कहा कि वो उस वक्त साग भी जो है ताज़ा तोड़ के लाना सुभान अल्लाह, और उसको ताज़ा पकाना, और वो मीठे पानी का साग जी होता है। जी हाँ। और सर साग का मेयार क्यों नहीं है कि हम गंदे नालों से तो साग पैदा कर रहे हैं। ये हडियारा ड्रेन जो हमारे पास से गुजर रही है, ये कमबख्त कहाँ कहाँ तबाही मचाती है। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी सब्जियां हम खाते हैं जो रिस्क कर पानी ज़ेरे ज़मीन इस ड्रेन का जाता है जी बिल्कुल, जो गंदा निरा लेके इंडिया से भी आ रही है, और हमने भी उसमें रही से कसर निकाल रखी है। फिर ये लिंक कैनाल के अंदर गिरता है एक जगह पे, वो लिंक कैनाल साउथ पंजाब को पीने का पानी फराहम कर रही है। ਹਾਏ ਹਾਏ फिर कहते हैं जी स्टंटेड ग्रोथ शुरू होगी बच्चों की। रावी के पुल से गुजरे तो बड़ी सड़ांड आती है, और उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो वो चील गोश्त, तौबा, और दूसरा अगर आप थोड़ी सी खुदाई करें ना कभी बेड ऑफ द रिवर में, खुद ही जाकर कभी डॉक्यूमेंट्री बनाएं इसके ऊपर, तो 3-3 फुट आपको शॉपर बैग मिलेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0 है, नो फिश, डेड रिवर कहते हैं इसको। डेड रिवर कहते हैं। ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਰਾਵੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ 2500 ਸ਼ੌਪਰ ਲੱਗਾ ਨਾਲ। ना करो यार, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਮਰਿਆ ਉੱਥੇ। क्यों भाई? ਸਰ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਰਦਾ ਮਰਿਆ। आपने कभी वहाँ स्विमिंग की? नहीं। कहाँ? रावी में यार उसने और कहाँ की है? वैसे तो मुझे शौक है। स्विमिंग करते हो? जी स्विमिंग किस जगह पे? स्विमिंग पूल में। ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ हाँ ਕਹਿ जी। ਰਿਹਾ। नहीं, उसमें भी ये नहीं घुस सकता। ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। वैसे मैंने देखा है सर आड़ू को स्विम करते हुए। अमानुल्लाह स्विमर है, बाकायदा स्विमिंग कर। सर आज से तकरीबन 15-20 साल पहले मैं अमान साहब से मिला था पीसी होटल में। हाँ जी। तो उन्होंने बकायदा मुझे बताया था कि यहाँ पे मैं स्विमिंग करने आता हूँ। जी जी, वहाँ के मेंबर थे, अब भी हैं। नहीं वो जुर्माना करके उन्होंने खड़ता ਉਹ ਹੀ ਨਹਾਤੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤਰ ਮਾਰਨਾ। किसने? ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਕੁੱਕੜ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। बिल्कुल कुत्ता पड़ जाता है, क्योंकि कुत्ते के मेमोरी बैंक में उसकी सेंट नहीं होती। हाँ जी, तो कहते हैं ये नई सेंट है। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸਰ आपके पास मेरी सेंट है। मैं एंटी स्नेक वैनम का तस्करा करना था जो मुझे याद नहीं रहा। हम हर साल 50,000 वायल्स एंटी स्नेक वैनम के इंपोर्ट करते हैं, एक ज़रे कसीर फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में ज़ाया कर देते हैं, फूंक डालते हैं। जबकि डाओ यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है बड़ी लंबी चौड़ी, और एंटी स्नेक वैनम बना ली है इतनी शानदार कि वो ना सिर्फ हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकती है, बल्कि एक ठीक ठाक एक्सपोर्टेबल आइटम है, और ज़र मुबादला इकट्ठा कर सकती है। लेकिन देखें, जराइम की अमाजगाह है ना हमारा मुल्क, करप्शनस्तान बन चुका है। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियों वाले, इन्होंने पैसा लगवा रखा होता है इन लैब्स को कि कोई चीज़ थ्रू नहीं करनी, कोई चीज़ पास नहीं करनी, कहीं ये ना हो हमारी इंपोर्ट बंद हो जाए, ये उल्टा एक्सपोर्ट करने लग जाए, क्योंकि हमने तो चीज़ जो करनी है 1,000 रुपए में, ये 2 रुपए में कर देंगे। जी हमने तो लूटना है दुनिया को दोनों हाथों से। सर ये कौन सा इदारा है? ड्रैप में फंसी हुई है, अच्छा, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ पे कोई ना कोई बुजुर्ग महर बैठा हुआ है जो कह रहा है कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं होगा। तो सर इमरान खान की नजर इधर नहीं पड़ती? उसकी किस किस चीज़ पर नज़र डालोगे आप? इतनी सी नज़र होती है बंदे की, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है हर चीज़ को आप स्पॉटलाइट दे सकें। ये तो मीडिया को साथ देना चाहिए। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। यार ये भी एक आइटम होता था, लेकिन वो डीरेल्ड होता है। सर बड़ा वो कल्चर, चूरी ख़त्म हो गई। वो एक कढ़ाई होती थी लोहे की, उसमें वो पाथियाँ वाथियाँ रख के, उसके अंदर एक कच्ची हांडी रोगनी, उसमें दूध बॉयल करते थे, हल्की हल्की आंच पे वो धुआं निकल रहा है। हम किस तरफ चल पड़े भाई? हम केंटकी से पाथियों पे आ गए। ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਚਣੀ, ਉਹ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। अच्छा कई दफा होता था मंजी को आग लग जाती थी, क्योंकि इस तरह की जो पुरानी अज़कार रफ्ता चारपाई हैं, उनके नीचे से बान जो है वो लटकता है, जैसे ये बोहड़ की जड़ें नहीं लटकती। हाँ जी हाँ जी।
अच्छा पहेलियां भी नानियां दादियां सुनाती होती थी कहानियां यार आप लोग चले ही जाए यहाँ से, पता है भाई हमारा असल कल्चर वही है। हमारा भी वही कल्चर है, लेकिन अब हम शहरों में लेकिन याद रखना चाहिए ना, वो बड़े खुशकिस्मत हैं जो शहरों में रहते तो हैं लेकिन उनका गांव के साथ ताल्लुक है और वो अपनी इन जड़ों पर बड़ा फख्र करते हैं। जी सर। आपका ताल्लुक भी गुजरात से है, आपके साथ बैठे हैं भाईजान, इनका सियालकोट से है, इनका शेखुपुरा बहावलपुर से है, मेरा ओकाड़ा से है, आपका यहीं लाहौर से। इधर टोबा, टोबा टेक्स आपका जी उकाड़ा सर, नहीं को गांव भी है साहब, बामा बाला चूचक, वाह आपका जी, फैसलाबाद सिटी। वो पहले पेंडी होता आपका मुल्तान शुजाबाद सर गांव है हमारा वहाँ भी। खजूरों के झुंड, आजकल खजूरें आई हुई हैं सखर और खैरपुर की, हर ताकतवर चीज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਗੀ। दरख्त आए हुए हैं पूरे बड़े सस्ते। अच्छा आप जब गांव जाते हैं कभी कभार जी, तो क्या फील करते हैं सारे? वो सारे इकट्ठे हो जाते, मसा मसा ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। अपनाइयत तो शो करते होंगे। बनाइए तो इतना प्यार करते हैं वो, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। जाहिर है। अच्छा ये शेव करवाना भी एक कमाल का कल्चर होता है जी सर। पहले कम से कम 15 मिनट आपकी इस कैविटी को वो छेड़ता रहता है, बदतर करना है। उसको वत्तर करना कहते हैं, पानी लगा के यूं ये पानी लगा कर वही नरम, करता रहता वो लगता चौंसा नरम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो वट्टी उस पे उस्तरे को तेज है। उस कर, तरह को तेज करता था, फिर शेव करता था और उसके बाद फटकड़ी लगाता था। अब तो ब्लेड वाले आ गए ना जी उस्तरे, जी जी वरना तो वही होता था, वो लटका होता था एक चमड़ा सा लंबा, उस पे भी उस तरह यूं जी कर। जी। और चौकी ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ। पूरा साल लोग पैसे जोड़ते सन मेले जोगे। लेकिन 2-3 बहुत घटिया चीजें भी होती थी जो अब निस्बतन कम होगी। वो क्या सर? ये जो कुत्तों की लड़ाई अब भी होती है लेकिन बहुत कम, वरना हर गांव में कुत्ते ते रिच दी भेड़, कुत्तियां दी भेड़, भेड़ अच्छी आपस की लड़ाई को कहते हैं। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। वो डरा होता है, उसे पता होता है कि ये तगड़ा है और आज मेरी मौत वाकई हो जाए। आपने लड़ाई देखी कभी? इन्हें तो कीती है। तो जी हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।